Good morning, students. Hope all you are safe at your home. देखिए, in the its present time, so many cases, so many corona cases in our city. So be safe at your home and do your study regularly. If you make a proper notebook, then note down the proper notes. Be carefully, and we will take a weekly test series according to your chapters and according to your time. It's I have already provided the information time to time for your next test. Now let's start our chapter 28, human reproductive system. What is reproduction? When a living organism have the capability of reproducing their offspring, this is the process is called reproduction. In humans, a system is work for reproduction process. This is called reproductive system. And humans is divided in two reproductive system. When it present in male, that we call the male reproductive system, and when it present in female, that we call the female reproductive system. Now we talk about the male reproductive system. Male reproductive system is divided in two main organs. Primary organs, just we should write here in primary organs is main organ is testis, and secondary organs which are helpful organs for primary organs. This is the so many organs like epididymis, Cowper glands, and so many spermatogenesis process, sperms. These all are the helpful organs. Now we talk about the first thing is testis structure. What is the basic structure of testis? Yesterday we talked about its main qualities, main structure. Now we talk its describe structure of testis. Each testis 4 cm thick and 2.5 cm long. All the testes have the thickness is 4 cm and length is 2.5 cm. Its weight is 10 to 15 gram. Testis has covered with 2 layers that we call the testicular capsules. यानी एक testis है, इसके अंदर 2 layers की presence हो गई. This layer is called testicular capsule. Its outer cover is called tunica vaginalis. Its outer cover is called tunica vaginalis and inner cover is called tunica albuginea. Inner cover क्या कहलाता है इसका? Tunica albuginea. Outer cover tunica vaginalis. It's a layer merged deep in testis. यानी tunica albuginea लेयर, जैसे ये लेयर है, ये लेयर मर्ज हो गई टेस्टिस के अंदर, उसके अंदर धस गई है, तो क्या होती है? दिस इज एंड दैट टाइम इट इज कॉल्ड सेप्टुला टेस्टिस. यानी जब मर्ज होने के बाद में टेस्टिस के अंदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेप्टुला टेस्टिस. ईच टेस्टिस डिवाइडेड इन 250 to 300 लोब्यूल्स. जैसे आपको टेस्टिस के स्ट्रक्चर हमने बताई थी, तो टेस्टिस जो होता है वो बहुत सारे लोब्यूल्स के अंदर, इस तरह के बहुत सारे टेस्टिस जो होते हैं लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड होता है. ईच लोब्यूल्स हैव सो मेनी स्ट्रक्चर. इस लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंट है. व्हाट इज दिस? व्हाट इज लोब्यूल्स हैव सो मेनी स्ट्रक्चर दैट वी डिस्कस. फर्स्ट इज 2-3 seminiferous tubules. यानी 2-3 seminiferous tubules are present in each lobule. यानी seminiferous tubules की presence है. Next is some endocrine glands are present here. Blood capillaries present here. Nerve fibers are present here. जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाई थी, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी बनाई थी, नर्व फाइबर्स भी बनाते हैं हम. तो ये जो होते हैं टेस्टिस के लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. Interstitial cells or leading cells present in connective tissue. Third is main important thing are interstitial cells, or we also call it leading cells. Leading cells are
प्रेजेंट इन आवर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कल हमने जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर बीच बीच में इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंस बनाई थी। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इसके बीच बीच में हमने इस तरह की लाइटिंग सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं और दीज सेल्स आर सीक्रेट ए मेल हार्मोन दैट वी कॉल द टेस्टोस्टेरॉन। मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। The which cells are, the important question is here, Leydig cells, which cells are secrete that male hormone? That the answer is Leydig cells. Which hormone? Testosterone. What is the main work of testosterone? It is very useful for depending बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल, यानी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए मेल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो उसको डेवलप करने के लिए जो मेन वर्क होता है वो किसका होता है? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरॉन। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल? जैसे वॉइस इज वेरी थिक, a dance of hairs present here. So this is the mostox present here. This all are the depends on testosterone. And testosterone के अंदर जो humans के जो बहुत गौण लैंगिक लक्षण होते हैं जैसे आवाज का भारी होना है, ठीक है, दाढ़ी मुस्काना है, these all are the depend of testosterone. Now this is a lobule have 2-3 seminiferous tubules and seminiferous tubules is covered with a membrane that we call the tunica propria. What is tunica propria? Seminiferous tubules have covered with a layer that we call the tunica propria. Its inside layer have divided in two types. Spermatogonial cells are present here and supporting cells are present here. Spermatogonial cells is the formation of sperm by the process of spermatogenesis. यानी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। Now we talk supporting cells. Supporting cells is also called Sertoli cells or nerve cells. Nerve cells. Sertoli cells or nerve cells. It is a number, यानी जो Sertoli cells की प्रेजेंस है वो नंबर क्या है? लेस है, कम है, एंड साइज जो है वो क्या है? लार्ज है, लार्ज साइज का है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट और नरिशिंग, इसका वर्क क्या है? मेनली Sertoli cells का ये स्पर्म को सपोर्ट प्रोवाइड करने और उसको नरिशिंग यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करता है। और सीक्रेट ए प्रोटीन इनहेबिन, इनहेबिन प्रोटीन का सिक्रेशन ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर। इनहेबिन एक प्रोटीन है जो कि किसकी तरह सीक्रेट हो रहा है? सपोर्टिंग सेल्स, या दैट वी आल्सो कॉल से इट हियर Sertoli cells आर सीक्रेट ए प्रोटीन इनहेबिन दैट्स द रेगुलेट ऑफ FSH, जो कि FHS यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रेगुलेट करने का वर्क करता है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। विच हार्मोन इज रेगुलेटेड फ्रॉम इनहिबिन प्रोटीन? द आंसर इज रेगुलेटेड FSH। एंड विच प्रोटीन is secreted by the Sertoli cells? That the answer is inhibin. Both are the important. Now we talk about the spermatogonial cells open into a dense network. Spermatogonial cells are open into a dense network that we call the रेटिटेस्टिस। जो spermatogonial cells हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये एक नेटवर्क के रूप में बाहर को जिसे हम रेटिटेस्टिस कहते हैं। Retitestis also open in 15 to 20 ductils and it will be open here. Vasa efferentia. Vasa efferentia is also a tubules, यानी रेटिटेस्टिस जो है वो 15 से 20 डक्टल्स के अंदर फॉर्म होती हैं और जिसमें खुलती है वासा एफरेंशिया में। और वासा एफरेंशिया जो होती है लास्ट में किसमें खुल रही है? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है? एपिडिडाइमस हमारा सेकेंडरी पार्ट है। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के अंदर आने वाला या हेल्पफुल ऑर्गन्स के अंदर आने वाला पार्ट होता है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नाउ वी टॉक अबाउट एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस थिन होता है, बिल्कुल पतला,
6 मीटर लॉन्ग, यानी जो लेंथ होती है उसकी क्या है, बहुत ज्यादा है। और कॉइल फॉर्मेशन यानी जैसे 6 मीटर लॉन्ग है तो ये नहीं कि इतना सारा लंबा सारा होता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में आ जाएगा वो चीज। तो ये क्या होता है, पूरा 6 मीटर लॉन्ग होते हुए भी कैसा होता है, पूरा कर्व लिए हुए होता है। फ्लैट कॉमा शेप्ड होता है, फ्लैट होता है, चपटा और कॉमा शेप्ड होता है। कॉइल्स आर अटैच्ड विद कनेक्टिव टिश्यू, जो इसकी जो कॉइल्स फॉर्मेशन इस तरह से है, तो ठीक है, ये किससे अटैच्ड है, कनेक्टिव टिश्यू से अटैच्ड होता है। इट विल बी डिवाइडेड इन फर्दर 3 टाइप्स, कैप्ट एपिडिडाइमस, कॉर्पस एपिडिडाइमस और कॉटा एपिडिडाइमस। कैप्ट एपिडिडाइमस वाइड होता है, अपर पार्ट जो होता है वो टेस्टिस से जुड़ा हुआ रहता है, वो होता है कैप्ट एपिडिडाइमस। सेकेंड है कॉर्पस एपिडिडाइमस, मिडिल पार्ट जो बीच वाला भाग होगा टेस्टिस का नैरो होगा और बैक सरफेस यानी पीछे वाले भाग से अटैच रहता है। और कॉटा एपिडिडाइमस क्या है, लास्ट पार्ट हो गया जो टेस्टिस का उससे जुड़ा रहेगा, थिन होता है, लोअर पार्ट ऑफ टेस्टिस यानी टेस्टिस का जो पीछे वाला भाग है उसको कवर किए हुए, पीछे वाला ये वाला भाग है उसको पूरी टेस्टिस ने कवर कर दिया, तो इस तरह से इसको कवर किए हुए रहता है। तो टुडे वी टॉक अबाउट एपिडिडाइमस, इट्स द सेकेंडरी ऑर्गन in male reproductive system, and also we discuss about the structure of testes. Do your work regularly, and if you make a file of biofile at your home, then same thing as in previous class, in 11th class you make a biofile, the same file is make here. The diagram is white page and matter is लाइनिंग पेज, यानी मैटर आपको लाइनिंग पेज पर लिखना है और डायग्राम आपको व्हाइट पेज पर प्रॉपर तरीके से बनाना है। लेबलिंग और जो उसका हेडिंग एक्सपेरिमेंट जो आप लिख रहे हैं कलरफुल या ब्लैक पेन से लिखे, बहुत डायग्राम्स और हर चीज को प्रॉपर तरीके से आपको बनानी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।